Hello student, today in chemistry of class 11 chapter 2 atomic structure we will learn how the electrons are filled in the orbitals, right? So there are large number of orbitals in an atom and the arrangement of electron in various orbitals is called electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप क्लास 9th में वर्ड सुन चुके हो जिसमें हम बोरबरी के हिसाब से 2n² के बेसिस पे ऑर्बिटल्स को फिल करते थे। k के लिए n की वैल्यू होती थी 1, तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ये आपने उसमें पढ़ा, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन विल बी टोटली डिफरेंट। Configuration will be totally different and we will learn how these electrons are filled in the 4 types of orbital that are s, p, d and f, right? So these electrons are these orbitals are filled on the basis of few rules, and these rules are called Aufbau rules or Aufbau. The rules mean building up. Building means up, that means building up of an atom by filling the electrons in their appropriate orbitals. So this is known as Aufbau rule, right? So we will continue with our first rule, that is minimum energy rule. Minimum energy rule, the energy of an electron, this rule says the energy of an electron in a multi-electron system is determined by values of principal quantum number and azimuthal quantum number L. Means the energy of an electron in a multi-electron system more than one electron is determined by the sum of प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर l. मिनिमम एनर्जी रूल ये भी कहता है वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, या वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी. सो द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर n+l वैल्यूज. मतलब जिसका कम वैल्यू होगा वो पहले फिल होगा. और ऑर्बिटल्स किस बेसिस पे फिल होंगे? n+l वैल्यू के बेसिस पे फिल होंगे. सो यू कैन सी 1s, तो पहला ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल्स को इस बेसिस पे बनाया गया है. जैसे ये आप नीचे देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ये ऑर्बिटल्स हैं. तो कैसे फिल होंगे देखिए. सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? सबसे पहले फिल होगा 1s. द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 1. यू कैन सी द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, दैट इज इक्वल टू 1, एंड द वैल्यू ऑफ l फॉर s इज 0, that we studied in previous lecture. So the value of n+l will be 1. Value of n+l will be 1. And similarly for 2s, n+l will be 2 plus 0, that will be equal to 2. The value of n is 2, and for l the value of s will be equal to 0, so this value will be 2. So between 1s and 2s, 1s will be filled first. Now for 2p, n+l, same, l value 2, n value 2, and for p the value of l will be equal to 1, that will equal to 3. So this will be filled first, and you can see 3s, the value of n will be equal to 3, and for s that will equal to 0, so this is 3. So the 2p will be filled then before 3s. So you this is how the orbitals are filled. But the question arises, what will happen if the values are same? Like you can see in 2p and 3s, 2p and 3s have same value of n+l. See, n+l 2 plus 1 is equal to 3, and n+l 3 plus 0 is equal to 3. So which one will be filled first? So the one having lower value of n, the one having lower value of n will be filled first. Remember this, the one having lower value of n will be filled first. The means those whose principal quantum number will be have less value, it will be filled first. And between 3d and 4s, n+l, the value of 3 plus 2 will be equal to 5. 3 plus 2 will be equal to 5, and 4s, 4 plus 0 is equal to 4. So 4s will be filled first. 4s will be filled first because the combined value is less. In this case, combined value is less, so it will be filled first. So when all the orbitals are filled according to this, we get the series like this. 1s, first 1s will be filled, then 2s, 2p, then 3s, 3p, then 4s, 3d, then 4p, then 5s, 4d, then 5p, then 6s, 4f, 5d, then 6p, 7s, 5f, 6d, and 7p. You have to remember this series. You have to remember all this in continuation. आपको इधर से इधर तक इसको सब याद करना है और सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन इतने के बीच में ही आ जाएगा. फिलहाल 11th के लिए आप इसे बस यहाँ तक याद कर लीजिए. 4p 5s तक इसको आप याद कर लीजिए. ठीक है. So this is the series of the
orbitals which are filled according to the minimum energy rule. According to the minimum energy rule. Then after this, the second rule is Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle says, according to the rule, no two electrons in an atom can have identical values of all the four quantum number. ये रूल ये कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले के जो 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तो ऑर्बिटल का एड्रेस बता रहे हैं. लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक है. पहले मैं इसे बता चुका हूँ. मीन्स प्लस ऑफ और माइनस ऑफ. प्लस ऑफ मतलब क्लॉकवाइज, माइनस ऑफ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. तो ये रूल ये कह रहा है कि जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनके पहले 3 क्वांटम नंबर तो तीनों के सेम होंगे, लेकिन चौथे क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन निश्चित उसका चौथा क्वांटम नंबर अलग होगा. इस रूल के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. इस रूल को आप ऐसे भी समझिए कि ये रूल ये कह रहा है कि एक ऑर्बिटल में कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनके फिर चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए. चारों क्वांटम नंबर, इन दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, और ये इस रूल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है. सो ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल रहा है. ठीक है, इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये देखिए आप, एस ऑर्बिटल बना हुआ है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. पी ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन थे, -1, 0, +1. इसका 0 था, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर देखिए इसका था -2, -1, 0, +1, +2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 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 इसमें कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन. डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन. और एफ ऑर्बिटल में इसका -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, सब में आप 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन. 14 इलेक्ट्रॉन. So if question comes, how many electrons can be accommodated maximum in an orbital? So your answer will be 2. एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकते हैं. बट इफ क्वेश्चन सेज p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप लिखोगे 6, या d ऑर्बिटल में तो 10 और f ऑर्बिटल में 14. राइट. सो इफ क्वेश्चन कम्स कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो केवल 2, लेकिन p ऑर्बिटल में 6, d में 10 और f में 14, क्योंकि p के 3 ओरिएंटेशन है, d के 10 ओरिएंटेशन है और f के 14 ओरिएंटेशन है. ये बात यहाँ पे मैंने लिख भी दी है. 1 ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. राइट. सो अब तीसरा रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो ये क्या कहता है? दिस इज द इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द अवेलेबल ऑर्बिटल्स इन अ सबसेट सिंगली एंड रिमेन अनपेयर्ड as far as possible. मीन्स कि ये रूल ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये देखिए, ये एक p ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, px, py, pz और -1, 0, +1. तो अगर मुझे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो उसको हम कैसे भरेंगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नहीं भरेंगे. 1, 2, 3 और 4, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल फिल करेंगे, फिर उसकी पेयरिंग होगी. इसी तरह देखिए, ये समझिए डी ऑर्बिटल है, अगर ये अगर डी ऑर्बिटल है, इसमें हमें इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं या 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं. डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7. मीन्स पहले सिंगली फिल करेंगे, उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी. क्यों? क्योंकि हुन्स रूल ये बोलता है कि कंप्लीटली हाफ फिल्ड मतलब D5 एंड F7 और कंप्लीटली फिल्ड D10 और F14, these orbitals are more stable. These orbitals are more stable. Right? That's why whenever an orbital is filled, first electrons are filled singly, and then pairing will take place, and they try to remain unpaired as far as possible. So remember this, completely half filled or completely filled orbital
is more stable. इसका एप्लीकेशन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तब तक आप इन 3 रूल्स को समझ करके रखिए, अच्छे से पढ़ के रखिए और इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।